Friends, today my topic is resource sharing and library networks. First, I will speak about resource sharing. So, resource sharing means library cooperation. Resource sharing means sharing of resources by library or to their optimum level for the mutual benefit of all the participating institutes. If यदि मान लीजिए कि हमारी लाइब्रेरी में कोई मटेरियल है, ठीक है, अगर वो किसी अदर लाइब्रेरी को भी उसकी ही नीड है, तो वाई टू परचेज दोज थिंग्स. इफ वी विल शेयर आवर रिसोर्सेज देन इट विल यूज हेल्प ऑफ द एनी लाइब्रेरी हु कैन नॉट एबल टू परचेज दोज थिंग्स. बहुत सारे इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं जो हर लाइब्रेरी परचेज नहीं कर सकती, बट इफ़ दे रिक्वायर्ड इन एनी if they required or in any library it is purchased already, why to purchase and why to waste money on that. आई नो कि कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होता है, बट अगर हम रिसोर्स शेयरिंग के ज़रिए कहीं भी किसी भी लाइब्रेरी में कोई हेल्प कर सकते हैं या अपनी इस तरीके से हम अपनी नेटवर्किंग भी बढ़ा सकते हैं, हम इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ भी करवा सकते हैं जो हमारी लाइब्रेरी में ऑलरेडी. तो रिसोर्स शेयरिंग इज़ बेसिकली रिलेटेड टू लाइब्रेरी कोऑपरेशन विच शोज़ म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द लाइब्रेरीज और इंस्टीट्यूशंस. नीड क्या है इसकी? There is a increase in book production globally and more journals and periodicals are also getting published. The need of readers is increasing. Readers are also more demanding. Sharing of resource solve the problem. These problems. अब एक ही टॉपिक है, मान चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, या फिर हमारी लाइब्रेरी का कोई टॉपिक है, तो उसे कई अलग अलग ऑथर लिखते हैं, बट लाइब्रेरी जो है वो हर ऑथर की बुक परचेज़ नहीं कर सकती. सपोज दैट हमारी लाइब्रेरी में किसी एक्स ऑथर की बुक है, किसी अदर लाइब्रेरी में किसी वाई ऑथर की वही सेम टाइटल की बुक है, तो वी कैन एक्सचेंज अवर रिसोर्सेज एंड आवर रीडर कैन टेक द बेनिफिट ऑफ बोथ द बुक्स. सो रिसोर्स शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज. And also in digital era, if there is any soft copy of any book or article or research paper, if that is available on our I will not go through that as a Delnet. It is a consortia which will provide the soft copy or hard copy of any book from anywhere in India or international level. So resource sharing is very important for library in printed or non-printed material for both collections. So it solves the problem of sharing, overcomes the problem of increased price and space for storing them. Sharing satisfies the increasing demand for document. Staff share their expertise with that also. So objectives क्या हैं resource sharing के? Following are objectives. It maximize the resource base of libraries. It provide democratic and wide access of information. It core collection. The resource sharing lead to the rational acquisition of document. It saves resources and use them optimally. It enables informed practices of in routine. It rational acquisition and they are avoiding wastage. अगर हमारी लाइब्रेरी में कोई बुक है वो हमने परचेज़ की, हमने परचेजिंग से लेके होल प्रोसेस तक कि वो सारी चीज़ें की, अगर वो हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो कोई अदर लाइब्रेरी का उसको यूज़ करेगी, तो दे विल सेव द टाइम. दे विल सेव वो जो एक्सेसनिंग में, जो उनकी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग में जो टाइम लगना था वो सेव कर सकते हैं, और हमारा जो रिसोर्स है वो भी ऑप्टिमली यूज़ हो सकता है वहाँ पे. लाइब्रेरी नेटवर्क्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने चैप्टर का नाम लिया था रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्क्स. तो व्हाट आर लाइब्रेरी नेटवर्क्स? व्हाई वी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी नेटवर्क? बिकॉज we have some ideas to generate or to implement in library, then we can share it with our colleagues or librarians that we have to be increase our professional, or I'm going to make any app for a library, suppose that which will use which is very useful for our students. If it is a college or academic library, then I can share my information, my resources to that library also, not into my patrons, to others as well as. So library networks are required to share our resources as well as. So networks enables the user to have access to resources of many other libraries beside their own. As I said कि अगर हमारी लाइब्रेरी का कोई मटेरियल है तो वो अदर लाइब्रेरी के यूज़र भी उसको यूज़ कर सकते हैं इफ़ वी प्रोवाइड द लाइब्रेरी नेटवर्क्स टू दैम. जैसे डेलनेट हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम किसी भी लाइब्रेरी की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सर्च कर सकते हैं. रिसोर्स शेयरिंग इश्यूज इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन. रिसोर्स शेयरिंग इज़ डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए है. मोर नंबर ऑफ लाइब्रेरीज एंड यूजर्स इन्वॉल्व एंड वैरायटी ऑफ लाइब्रेरीज एंड यूजर इन्वॉल्व. लाइब्रेरीज इन्वॉल्व शुड ऑब्जेक्टिवली फ्रेम पॉलिसीज विद रिगार्ड डॉक्यूमेंट टू बी शेयर्ड, not
इट शुड नॉट बी, मतलब हम शेयर नहीं करेंगे अपनी चीज़ें. टर्म्स एंड कंडीशन फॉर लोन एंड रिटर्न एंड कन्वीनियंट मेजर टू इंश्योर सेफ एंड टाइमली रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. लेकिन हमें एक टाइम बाउंडेड होते हैं इसके लिए कि हमें इतने टाइम में अपने रिसोर्सेज को जो है वो वहाँ पे उनको, मतलब हमें टाइम दिया जाता है. अगर हम इंटरलाइब्रेरी लोन पे कोई बुक मंगाते हैं तो हमें 15 डेज़ का टाइम, हमारे यूज़र को अगर ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए तो हमें उन्हें फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है. बट by this we are providing different type of information to our user on a same topic. So it's about the resource sharing. What is library consortia? तो थोड़ा सा लाइब्रेरी कंसोर्शिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं. आगे के नेक्स्ट चैप्टर में मैं लाइब्रेरी नेटवर्क्स और लाइब्रेरी कंसोर्शिया के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगी. तो लाइब्रेरी कंसोर्शिया क्या होता है? कंसोर्शिया ऑफ लाइब्रेरी शेयर रिसोर्सेज. सेवरल लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड हैव फॉर्म्ड कंसोर्शिया टू शेयर देयर ह्यूमन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज. तो कंसोर्शिया किस लिए बनाए गए हैं? ताकि हम अपने कोई सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल वी कैन शेयर ऑन दैट प्लेटफॉर्म. हाउएवर कंसोर्शिया नाउ बीइंग ओवरहेड एवरीवेयर इज़ बिकॉज ऑफ डिजिटल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. कंसोर्शिया अब हर जगह यूज़ कर रहा है हो रहा है क्योंकि नेटवर्क के जरिए. इट रेफर्स टू कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन. इट वर्क्स ऑन 3 C's: cooperation, coordination and collaboration between and among libraries for purpose of sharing information resources. अगर हम cooperation कर रहे हैं तो हम resource sharing, library cooperation includes resource sharing. Coordination, we are coordinating with other libraries and providing them access to our library. Collaboration, we are collaborating with other libraries so that their user can use our material as well as. Currently, university library are purchasing material to answer the need of their user. The task is difficult for a single library. By forming consortia among libraries, it becomes possible to purchase information in stabilized and reasonable prices. So every one library don't have same budget, have a different. If we go to the rural libraries or rural areas library, college, even they are college library, they don't have access of, they don't have budget of more than according to their library. I will not mention about that. बट अगर उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो महंगी किताबों को या ज़्यादा किताबों को खरीद सके अपने यूज़र्स के लिए, तो कंसोर्शिया उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं. किसी भी लाइब्रेरी की कोई सी भी बुक हो तो उसे मंगा सकते हैं, अपने यूज़र को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. लाइब्रेरीज़ का पहला मोटो जो होता है वो यही होता है कि हमारे यूज़र को हम किसी भी समय कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. थैंक यू. इट्स ऑल अबाउट रिसोर्स शेयरिंग, लाइब्रेरी नेटवर्क एंड लाइब्रेरी कंसोर्शिया का शॉर्ट वीडियो है. आई विल एक्सप्लेन लाइब्रेरी कंसोर्शिया एंड लाइब्रेरी नेटवर्क फर्दर.